اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، جیسے ہی رجب المرجب کا مہینہ آتا ہے تو نماز جمعہ کے خطبوں میں، سوشل میڈیا پر اور دیگر محافل میں ناسبی حضرات یہ پروپیگنڈا کرتے نظر آتے ہیں کہ 22 رجب المرجب کو حضرت معاویہ کی وفات کا دن ہے اور شیعہ حضرات ان کی وفات کی خوشی میں کنڈے بناتے ہیں۔ آئیے ان کے جید ملاؤں کے بیانات ملاحظہ کیجیے۔ کنڈوں کا ختم جو ہے وہ خالص شیعہ کی رسم ہے جو حضرت معاویہ کے بغض میں وہ کرتے ہیں۔ یہ تو حضرت معاویہ کی موت پہ خوشی مناتے ہیں ظالم۔ سب حرام ہے، کھانا بھی حرام، پکانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام۔ امام جعفر کا کوئی تعلق نہیں کنڈے سے، وہ کوئی رجب میں تھوڑے پیدا ہوئے تھے۔ 22 رجب کو اس مہینے کے اندر بہت سی بدعات ہیں، 2 بدعات زیادہ ہیں۔ ایک 22 رجب کے کنڈے ہیں۔ اگر کسی نے مطالعہ کرنا ہے تاریخ کی کتب اٹھائیے، 22 رجب کو اسلامی ہسٹری میں کوئی واقعہ نہیں ہوا سوائے ایک عظیم الشان واقعے کے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کا یوم وفات ہے۔ یہ کنڈے بھی اصل میں حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں ہمارے رافضی لوگوں نے ایجاد کیے تھے۔ جب کوئی دلیل نہ ملی تو امام جعفر کی طرف سے اس کے فضائل منقول کر دیے۔ پوری ایک کہانی گڑی ہوئی ہے، امام جعفر صادق نے ایک فلانی کو کہا تھا اگر یہ کرو گی وغیرہ وغیرہ۔ دشمنان اصحاب رسول نے جب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا تو آپ کے انتقال کی خوشی میں 22 رجب کو خوشی کے طور پہ میٹھا پکایا اور خفیہ طریقے سے تقسیم کیا کہ اہل سنت شام میں بہت زیادہ رہتے ہیں، ان کو خبر نہ ہو، اس لیے اس کو خفیہ رکھا جاتا ہے کہ آپ خاموشی سے پکا کے کھلا دیں۔ کیونکہ 22 رجب کو چونکہ وہ نام نہیں لے سکتے تھے کاتب وحی کا، اس لیے انہوں نے اس کو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا اور سنی عوام بھی اس جھانسے میں آ گئی۔ ماہ رجب میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو نہیں کرنے کے اور لوگ اس کو ضرور کرتے ہیں۔ وہ ایک بہت معروف رسم کہہ لیں، بدعت کہہ لیں، یا اس کو آپ کوئی خرافات کا حصہ دے لیں، وہ ہیں کنڈے کی رسم۔ کنڈے کی رسم 22 رجب کو بہت سارے لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے لیکن دین سے محبت ہے، دین کی درد ہے، وہ لوگ کسی کو دیکھا دیکھی سازش کا شکار ہو کے کم فہمی کی بنیاد پہ کنڈے کی رسم کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ کنڈے کی رسم ادا کرتے ہیں ان نے یہ تاثر دیا ہے کہ یہ کنڈے حضرت امام جعفر صادق کے کنڈے ہیں، حالانکہ ان کنڈوں کی رسم کا حضرت امام جعفر صادق سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے امام جعفر صادق کی پیدائش ہے رمضان سن 80 یا 83 ہجری، اور آپ کی پیدائش ہے شوال 148 ہجری۔ تو رجب میں نہ ان کی پیدائش ہے اور نہ ہی رجب میں ان کی وفات ہے، تو 22 رجب کے معاملے کا ان سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے وہ ہے 22 رجب سن 60 ہجری۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات رجب سن 60 ہجری کو ہے۔ اصل کیا تھا کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں اور شریعت کے باغی ہیں اور اہل تشیع ہیں، ان لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر رات کو چھپ کر یہ حلوے اور مانڈے پکا کر خوشی کی ہے۔ اہل و سنت کا زور تھی، طاقت تھا، اتنی ہمت نہیں تھی کہ اہل و سنت کے سامنے اعلانیہ طور پہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات پر خوشی بنائی۔ اس لیے خوشی بنائی لیکن چھپ چھپ کے بنائی۔ اسی وجہ سے شاید آپ کے بھی علم میں ہو، ایک عرصہ تک یہ رسم رات کو ادا کی جاتی رہی۔ لوگ کہتے تھے کہ کنڈے صبح فجر کی اذان سے پہلے پکانے اور کھانے ضروری ہیں۔ اس کی بنیاد کیا تھی کہ اہل تشیع اور روافض امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر یہ رات کی تنہائی میں اور رات کے اندھیروں میں اس رسم کو بنایا کرتے تھے، لیکن جب سے شیعت نے زور پکڑا یا یوں کہ اہل سنت کے ایمان میں کمزوری آئی اور اپنے عقائد کا تحفظ چھوڑا ہے، اس وقت سے اب دن کو اعلانیہ طور پر بھی کنڈوں کی رسم شروع ہو گئی ہے۔ یہ جو لوگوں نے رجبی بنائی ہوئی ہے اور نمازیں بنائی ہوئی ہیں اور کنڈے امام جعفر کے یہ سب بدعات ہیں۔ 23 رجب کو حضرت امیر معاویہ کی وفات بالکل جو کنڈے شنڈے بناتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک صحابی جلیل کی موت پہ خوشیاں مناتے ہیں۔ امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے جو 22 رجب المرجب کو جن کی وفات ہوئی ہے
इंतकाल हुआ है उनको, उम्मत मुस्लिमा यतीम हुई है, जिनकी वफात से इतना बड़ा सदमा पहुंचा है उम्मत को कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास खाने काबा में दस्तरखान बिछाए हुए अपने साथियों के साथ बैठकर खाने पर अभी बैठे ही थे कि खबर मिलती है, दमिश्क से आने वाला शख्स खबर देता है कि आज अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया की वफात हो गई है, कातिबे वही इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, उम्मत का, लोगों का मामू, मोमिनों का मामू इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, अमीर मुआविया का इंतकाल हो चुका है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास दस्तरखान को समेटने का हुक्म देते हैं, दस्तरखान समेट दिया जाता है, सोग मनाया जाए। क्यों? इसलिए कि एक अजीब हुक्मरान आज इस दुनिया से गया है, उसका ताल्लुक 22 रजब से जरूर है। ये पैगाम अपने खानदान वालों को दो, ये पैगाम उन लोगों को दो जो अपने आप को सुन्नी कहने के बावजूद 22 रजब के दिन कुंडों की ईद करते हैं। भला मेरे भाइयों, ये कैसी ईद है 22 रजब की? ये अजीब मामले की ईद है कि इस दिन हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई है। ये 22 रजब का दिन है जिस दिन मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है। जी सामीन, कुंडों के बारे में जोहला की बिला दलील तौजीहात आपने मुलाहिजा की। आइए अब इन्हीं की किताबों से आपको दिखाते हैं कि मुआविया की तारीख वफात 22 रजबुल मुरज्जब है या कोई और है। सबसे पहले मैं आपके सामने गैर शिया हजरात के यहाँ मुस्तनद तारीख का दर्जा रखने वाली किताब तारीख इब्न कसीर का हवाला देने लगा हूँ, जिसे इनके यहाँ अल्लामा का दर्जा रखने वाले अबुल फिदा अमादुद्दीन इब्न कसीर दिमश्की ने लिखा है। और मेरे पास जो मतबूआ है ये नफीस एकेडमी उर्दू बाजार कराची पाकिस्तान का है। जिल्द इसकी 8 सफ़ा 187 है और बाब का नाम 60 हिजरी में रूनुमा होने वाले हालात व वाक़ियात के बयान में है। इसमें लिखा है कि इसमें कोई इख्तलाफ नहीं कि आप यानी मुआविया ने रजब 60 हिजरी में दिमशक में वफात पाई, और एक जमात का कौल है कि 15 रजब 60 हिजरी को जुमेरात की शब को वफात पाई, और बाज का कौल है कि 22 रजब 60 हिजरी को जुमेरात की शब को वफात पाई। ये कौल इब्ने इसहाक और दीगर मौर्रिखीन का है। और बाज का कौल है कि 4 रजब को वफात पाई, ये कौल लैस का है। और साद बिन इब्राहीम का कौल है कि रजब के आगाज में वफात पाई। और सामीन, अगर आपके पास तारीख इब्ने कसीर मतबूआ दारुल अशाद कराची पाकिस्तान है तो जिल्द इसकी 4 और सफ़ा 479 है और बाब का नाम 41 से 73 हिजरी के वाक़ियात हैं। इसमें लिखा है कि इसमें कोई इख्तलाफ नहीं कि आप यानी मुआविया ने रजब 60 हिजरी में दिमशक में वफात पाई। बाज ने कहा कि आपने निस्फ रजब में यानी 15 रजब में शबे जुमेरात में वफात पाई। और बाज ने कहा कि माह रजब के शुरू होने से 8 दिन पहले। ये इब्ने इसहाक वगैरह का कौल है। लैस कहते हैं कि 4 रजब में वफात पाई। दूसरा हवाला आपको मैं तारीख तबरी से देने लगा हूँ, जिसको गैर शिया के यहाँ अल्लामा का दर्जा रखने वाले अबी जाफर मोहम्मद बिन जरीर तबरी मुतवफ़ा 310 हिजरी ने लिखा है और ये नफीस एकेडमी उर्दू बाजार कराची पाकिस्तान से छपी है। जिल्द इसकी 4 और सफ़ा 130 है और बाब का नाम अमीर मुआविया से शहादत हुसैन तक वफात अमीर मुआविया है। सामीन, इसमें लिखा है कि मुआविया बिन अबी सुफियान के हलाक होने पर सबका इत्तफाक है कि रजब 60 हिजरी में यह वाक़या हुआ। हाँ, इसमें इख्तलाफ है कि रजब की पहली तारीख थी या 15वीं तारीख थी या 22वीं तारीख थी और पंशबा यानी जुमेरात का दिन था। तीसरा हवाला तारीख याकूबी से देने लगा हूँ, जिसको अहमद बिन अबी याकूब बिन जाफर बिन वाहब बिन वाज़ेह ने लिखा है और इसका तर्जमा मुल्ला अख्तर फतेहपुरी ने किया है और ये नफीस एकेडमी उर्दू बाजार कराची पाकिस्तान से छपी है। जिल्द इसकी 2 और सफ़ा 393 है। इसमें लिखा है कि हजरत मुआविया तुरशरो उभरी हुई आंखों वाले, घनी दाढ़ी वाले, चौड़े सीने वाले, बड़े सुरीन वाले यानी बड़े बटक्स वाले और छोटी पिंडलियों वाले और रानों वाले थे। आपकी हुकूमत 9 साल 8 माह रही और यकम रजब को आपने वफात पाई। और बयान किया जाता है कि आपने 15 रजब 60 हिजरी को वफात पाई। आपकी उम्र 77 साल थी और 80 साल भी बयान की जाती है। और सामीन, गैर शिया के यहाँ इमाम
अल्लामा और उम्दतुल मुअर्रिखीन का दर्जा रखने वाले अबिल हसन अली बिन अबिल करम मोहम्मद बिन अब्दुल करीम बिन अब्दुल वाहिद शीबानी, जो इब्ने असीर के नाम से मशहूर हैं और इन्होंने 630 हिजरी में वफात पाई, अपनी किताब अल कामिल फी तारीख जो दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत लबनान से छपी है और जिल्द इसकी 3 है और सफ़ा 369 है, में लिखा है कि मुआविया की वफात रजब की पहली तारीख को हुई। और यह भी कहा गया है कि रजब के निस्फ में यानी 14 या 15 तारीख को मुआविया की वफात हुई, और यह भी कहा गया है कि 22 रजब को वफात हुई। और सामीन, गैर शिया के यहाँ इमाम, आलिम और हाफिज का दर्जा रखने वाले अबिल कासिम अली बिन अल हसन इब्ने हिब्बतुल्लाह बिन अब्दुल्ला, जो शाफी मसलक से थे और इब्ने असाकर के नाम से मशहूर थे, ने अपनी मशहूर व मारूफ तारीख मदीनतुद दिमशक जो दारुल फिक्र से छपी है और जिल्द इसकी 59 है और सफ़ा 237 है, इसमें लिखा है कि मुआविया जुमेरात के दिन 15 रजब को 60 हिजरी में फौत हुए। और सामीन, गैर शिया के यहाँ इल्म अंसाब के अल्लामा का दर्जा रखने वाले अबी जाफर मोहम्मद बिन हबीब ने अपनी किताब अल महबर में सफ़ा नंबर 21 में लिखा है कि मुआविया रजब की 1 तारीख को सन 60 हिजरी में फौत हुए। जी सामीन, जैसा कि आपने मुलाहिजा किया कि तमाम मौर्रिखीन का इस बात पर इत्तफाक है कि मुआविया की वफ़ात 22 रजब को नहीं हुई। कुछ के नज़दीक ये 1 रजब है, कुछ के नज़दीक 4 रजब है, कुछ के नज़दीक 15 रजब है और कुछ के नज़दीक 22 रजब है। लेकिन नासबी हजरात आज तक लोगों को यही बताते आए हैं कि मुआविया की वफ़ात 22 रजब को है। अगर ये अपने दावा में सच्चे होते तो लोगों को पूरी हकीकत बयान करते कि मुआविया की तारीख़ वफ़ात में मौर्रिखीन का इख्तलाफ है। वो तमाम तवारीख ऐसे ही आपको बताते जैसे मैंने आपको बताई और दिखाई है। नासबी मुल्ला ये प्रोपेगंडा भी करते हैं कि 1 मुहर्रमुल हराम हज़रत उमर की शहादत का दिन है, जबकि मैं अपनी एक वीडियो में गैर शिया कुतब से ये साबित कर चुका हूँ कि हज़रत उमर की शहादत 1 मुहर्रमुल हराम को बिल्कुल नहीं हुई। बिलफर्ज अगर मुल्ला की ये बात मान भी लें कि शिया हजरात मुआविया की वफ़ात की खुशी में कुंडों की नियाज दिलाते हैं, तो फिर शिया हजरात तो हज़रत अबू बकर, उमर और उस्मान की खिलाफत के भी कायल नहीं, उनकी बुजुर्गी के भी कायल नहीं। फिर वो उनमें से किसी की वफ़ात पर कुंडों की नियाज क्यों नहीं देते? और उमर की वफ़ात तो नासवियों के नज़दीक 1 मुहर्रमुल हराम को हुई, तो शिया इस दिन कुंडों की नियाज क्यों नहीं देते? शिया हजरात के यहाँ तो 1 मुहर्रमुल हराम से अय्याम अज़ा यानी 100 के अय्याम शुरू हो जाते हैं, गम के दिन शुरू हो जाते हैं, और वो इन अय्याम में किसी किस्म की खुशी की महफिल में शिरकत नहीं करते और इन अय्याम में खुशी की तकारीब मुनक़िद करने वालों से बेजारी का इजहार करते हैं, बल्कि उनसे कता ताल्लुक कर देते हैं। लिहाजा नासबियों का ये कहना कि शिया हजरात मुआविया की वफ़ात की खुशी में कुंडे मनाते हैं सरासर बेबुनियाद है, झूठ है, मनगढ़ंत है और अकल के खिलाफ है। अब जो लोग कहते हैं कि शिया हजरात 22 रजब को इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की नियाज क्यों दिलाते हैं, जबकि ना तो ये उनकी तारीख़ पैदाइश का दिन है और ना उनकी तारीख़ वफ़ात का दिन है, तो जनाब हमने कब कहा कि ये उनकी तारीख़ पैदाइश या तारीख़ वफ़ात का दिन है? हमें तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म फरमाया था कि इस दिन कुंडों की नियाज दो, इसलिए हम 22 रजब के दिन कुंडों की नियाज का एहतमाम करते हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि हम 22 रजबुल मुरज्जब को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ईसाले सवाब के लिए नियाज दिलाते हैं, तो ये उनकी जहालत का मुंह बोलता सबूत है। शायद उनको मालूम नहीं कि ईसाले सवाब गुनाहगारों को पहुंचाया जाता है, जबकि मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तमाम किस्म की बुराइयों से, हर तरह की खताओं से, हर लग़्ज़िश से मुनज़्ज़ा और मुबर्रा हैं। और ये तो अकल का भी तकाजा है कि हमारा इमाम, हमारा रहबर, हमारा पेशवा, हमारा हादी, हमारा हिदायतकार तमाम उयूब से, तमाम गुनाहों से पाको पाकीज़ा होना चाहिए। अगर रहबर ही गलती करेगा तो हम बेचारे खताकारों का क्या हाल होगा? तो मेरे अजीज़ों, मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम गुनाहगारों की शफाअत करने वाले हैं। ये हमारे ईसाले सवाब के हरगिज़ मोहताज नहीं, बल्कि हम उनकी शफाअत के मोहताज हैं। जन्नत में सरदारी इन्हीं की है। और जो लोग कहते हैं कि 22 रजब की नियाज बिद्दत है,
تو پہلے وہ اپنے گریبان میں جھانک لیں۔ ہم نے ان کی کتب سے یہ ثابت کیا ہے کہ نماز تراویح باجماعت بدعت ہے، اور خود اس کے بانی نے اس کو بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت کہا ہے، جبکہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کلو بدعت ضلالۃ، کہ ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے اور بدعتی جہنم کی آگ میں ہے۔ اور نماز فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جملے بھی بدعت ہیں، اور نماز جمعہ کے لیے 2 بار اذان دینا بھی بدعت ہے، اور ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا بھی بدعت ہے۔ اور یہ تمام بدعات میں اپنے چینل مبلغ اعظم مشن کی وساطت سے بدعت کی پلے لسٹ میں موجود ویڈیوز کی صورت میں دے چکا ہوں۔ سامعین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ دشمنان محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی حقیقت لوگوں پر واضح ہو جائے